Freedom, written by Langston Hughes. Stanza number 1. Freedom will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. आज़ादी ना आ जाएगी ना इस साल, ना कभी भी, ना समझौते से, ना खौफ से. Reference to context. These lines have been taken from Freedom, written by Langston Hughes. This stanza introduces the poet's firm stance that freedom doesn't arrive automatically or through fearful submission. It is a bold rejection of those who expect liberty without struggle. Expanded explanation. Langston Hughes begins the poem with a powerful and direct message. Freedom is not a passive reward. It does not come merely by waiting for the right time or by compromising with oppressor. The poet wants to shatter the illusion held by many that with patience or appeasement, freedom will one day be given. Instead, he emphasized that true freedom demands courage, confrontation, and deliberate action, not fear or silence. This stanza reflects the historical reality faced by African, American, and oppressed people worldwide who are often told to wait for justice. दरअसल इस पूरे स्टेंजा के अंदर जो लैक्सटन ह्यूज हैं वो बयान करते हैं आज़ादी अमन से नहीं आती, आज़ादी फ़लसफ़ाना बातों से नहीं आती, आज़ादी बैठ के इंतज़ार करने से नहीं आती, आज़ादी आती है बगावत से, आज़ादी आती है खड़े होने से, ज़ुल्म बर्दाश्त करने से आज़ादी नहीं आएगी, ज़ुल्म का सामना करने से आज़ादी आएगी, ज़ुल्म के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होने से आज़ादी आती है. इस तरह से पाकिस्तान में देख लें, आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और इस तरह से दुनिया की तमाम कौमें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने ही आज़ादी हासिल की है. तहरीक पाकिस्तान को देखिए तो मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपने माल की बाजी लगाई है, इज़्ज़तें तक गँवानी पड़ती हैं आज़ादियाँ हासिल करने के लिए. तो इस स्टैन्ज़ा का जो असल थीम है, इसकी एक्सप्लेनेशन वो यही है कि आज़ादी अगर लेनी है तो खामोशी से बैठ के नहीं बल्कि बाहर निकल के, लड़ाई करके, जंग करके आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी. स्टैन्ज़ा नंबर 2. I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and on the land. मेरे पास भी इतना ही हक है जितना किसी दूसरे इंसान के पास कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और ज़मीन का मालिक बनूं. Refers to the context. This stanza expresses the poet's belief in equality of right. It challenges systematic discrimination and ownership that favors only a few. Expanded explanation. Here, Hughes is asserting his humanity and demanding his basic rights. He emphasizes that he is just a human and deserving of rights as any other person. This includes the right to stand with dignity and to own land, a symbol of security, independence, and belonging. The poet critiques a society where land and powers are monopolized by a dominant class. His words echo the cries of the oppressed who are marginalized and excluded from the very earth they live on. It is a universal call for fairness and justice in society. इस स्टैन्ज़ा के अंदर पोएट बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बयान करता है कि इस ज़मीन के ऊपर रहने का मेरा हक भी उतना है जितना किसी मिलियनर का, किसी करोड़पति का, अरबपति का. मेरा हक भी है कि मैं अपने हकूक़ की हिफाज़त करूँ, अपनी ज़मीन की, अपनी जान की, अपनी माल की हिफाज़त करूँ. मेरी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी वीआईपी की, जितनी किसी मिलियनर की या किसी बादशाह की. स्टैन्ज़ा नंबर 3. I tire so of hearing people say
Let things take their course, tomorrow is another day. मैं थक चुका हूँ लोगों को ये कहते हुए सुन सुनकर कि हालात को उनके हाल पर छोड़ दो, कल नया दिन होगा. Reference to the context. The poet reacts to false hope often given by those in power to avoid immediate action. Tomorrow becomes an excuse for inaction. Expanded explanation. Langston Hughes expresses his deep frustration with the passive attitude of the society. He is tired of being told to be patient, to wait for a better future. The idea that tomorrow is another day is shown as a delaying tactic, often used to maintain the status quo and suppress demands for justice. The poet sees his as an empty promise that does nothing to address the urgent needs of the present. His tone reflects the anger of generations of people who have been fed the same comforting lies while their real needs and rights remain ignored. इस स्टैंजा के अंदर लैंगस्टन बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करता है कि मुझे झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी, बिल्कुल ये नहीं कहना कि कल जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये काम बहुत ही नस्लों से चलता हुआ आ रहा है। कल जो काम होगा वो एक झूठ है। इंसाफ का तकाजा है कि उसे उसी दिन ही मुकम्मल किया जाए जिस दिन उसकी ज़रूरत है। अगर इंसाफ में भी डिले किया जाएगा तो वो भी उसकी हकीकी अहमियत को ख़त्म कर देता है। शायर ये बयान करता है कि मुझे आज के दिन ही मेरा हक चाहिए, मुझे कल के दिन के ऊपर कोई झूठी उम्मीद, कोई झूठा ख्वाब, कोई झूठी तसल्ली ना दिलवाई जाए। Stanza number 4. I do not need my freedom when I am dead. I cannot live on tomorrow's bread. मुझे मरने के बाद आज़ादी की ज़रूरत नहीं। मैं कल की रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। Reference to the context. This stanza criticizes delayed justice, emphasizing the freedom must be experienced in the present, not postponed. Explanation. Expanded explanation. In this striking stanza, Hughes speaks to the urgency of present deliberation. He clearly states that posthumous freedom granted after death, is meaningless. Human beings cannot sustain their lives or dignity on promises of future freedom or justice. People need real change now, not symbolic words or gestures. The metaphor of tomorrow's bread underlines the survival itself depends on timely justice. This line is especially powerful as it condemns the cruelty of asking oppressed people to suffer today in the hope of a better tomorrow. इस शेर के अंदर या इस स्टैंजा के अंदर शायर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे माशरे की अक्कासी कर दी है कि तुम लोग मुझे आज की रोटी जो है वो आज ही दे दो, मैं मर जाऊंगा तो कल मुझे उस रोटी की क्या हाजत रह जाएगी। मेरा हक मुझे आज दे दो ताकि मैं आज का दिन सुकून से गुजार सकूं, कल मुझे उस हक की क्या जरूरत होगी जब मैं कब्र में जा चुका हूँगा। यहाँ पर जो शायर ने टुमारोज ब्रेड का नाम वर्ड यूज किया है वो बहुत ही अहम है कि आज की रोटी आज ही मिल जाए ताकि मैं खा के से जी सकूं। तुम मुझे जो उम्मीदें झूठी दिलाते हो कि आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा, आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा, क्या तुम्हारे घर में ये उम्मीद सुनी जाती है? तुम्हारे अपने घर में तो ये उम्मीदें नहीं सुनी जाती, ये बातें नहीं सुनी जाती, ये कहानियां तो नहीं सुनी जाती, लेकिन तुम मुझे सुनाते हो, आम आवाम को तुम ये बातें सुनाते हो कि हम ये कर रहे हैं तब्दीली के लिए, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, कल ये काम होगा। लेकिन इनके अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो अय्याशियां हैं, वो कभी भी कम नहीं होती। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पोस्टमस। पोस्टमस का मतलब होता है मरने के बाद। स्टैंजा नंबर 5. फ्रीडम इज अ स्ट्रॉन्ग सीड प्लांटेड इन अ ग्रेट नीड। आजादी एक ताकतवर बीज है जो किसी बड़ी जरूरत के वक्त बोया जाता है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट.
This metaphor shows that freedom does not grow on its own. It arises from deep pain and hunger and struggle. Expanded explanation. Langston Hughes uses a symbolic image of freedom as a seed that is planted when the ground is ready with urgent need. This means that freedom grows from real human sufferings, from the hunger for justice, from the thirst for equality. Just like a seed needs proper soil and care, freedom needs awareness, sacrifice, and resistance. The strong seed also reflects how powerful the idea of freedom is once it takes root. This stanza celebrates freedom not as a luxury, but as a natural, necessary result of injustice and ह्यूमन नीड्स। इस वर्ष के अंदर इस स्टैंजा के अंदर शायर ने ये बयान किया है कि आज़ादी का जब बीज बोया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात होती हैं। आज़ादी का बीज अय्याशी में और मौजें करने के लिए नहीं बोया जाता। ये जो अय्याशी है ये सिर्फ अमीरों के लिए है। आज़ादी उन लोगों के लिए होती है जो कि बेचारे पिस रहे होते हैं, जो कि मुश्किलात में, दिक्कत और तंगी के अंदर पिस रहे होते हैं, आज़ादी उनके लिए होती है। और स्ट्रॉन्ग सीड से यहाँ पर मुराद ये है कि जितना आपका नज़रिया मजबूत होगा, आज़ादी के उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे नज़रिया पाकिस्तान बहुत ही मजबूत था, तो आज़ादी के चांसेस जो हैं हर हाल में मुमकिन थे। और क्योंकि ये मुसलमानों की डिज़ायर थी और ये ज़रूरत उनको, ये ख्वाहिश उनके दिल में जो पैदा हुई थी, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी। Stanza number 6. I live here too. I want freedom just as you. मैं भी यहाँ रहता हूँ, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ जैसे तुम चाहते। Reference to the context. The poet ends with a powerful claim of belonging and equality, rejecting exclusion. Expanded explanation. This final stanza is a simple but firm declaration of identity and equality. Hughes reminds society that he is not an outsider, not invisible. He lives in the same land, breathes the same air, and deserves the same freedom as anyone else. It is a universal statement for all oppressed people who are told that they do not belong. This last line, just as you, is especially impactful because it breaks all false boundaries of race, class, or privilege, affirming common humanity. इस स्टैंजा के अंदर लैंगस्टन जो हैं वो इस बात को वाज़ेह तौर पे पुरअसर तरीके से बयान करते हैं कि आम इंसान भी इसी दुनिया के रहने वाले हैं, वो भी इसी वतन के वासी हैं, उन्होंने भी इस वतन के लिए वही कुर्बानियाँ दी हैं जो किसी और ने दी हैं, उनके भी वही हकूक़ हैं जो किसी और के हैं, और वो जीना चाहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे जीना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इसी जगह पे रहता है, इसी मुल्क में रहता है, इसी के लिए जीता है, इसी के लिए ही मरता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कानून है कि तमाम बाशिंदे किसी भी मुल्क के वो बराबर हैं, चाहे कोई दौलतमंद है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसके बुनियादी हकूक़ एक जैसे ही हैं। Summary of the poem. The poem Freedom, written by Langston Hughes, is a powerful protest against injustice. He says that freedom does not come through compromise, fear, and by simply waiting. The poet clearly states that every human being has an equal right to stand on their own feet on this earth. He is tired of hearing people constantly offering hope for tomorrow, but he knows that freedom has no value if it comes after death. He describes freedom as a seed that is planted during times of great need and suffering. In the end, he declares that he too is a part of this land and he deserves the same freedom that others enjoy. This poem is a call to awaken against oppression, a message that holds importance in every era, for every era and for every nation. डियर स्टूडेंट्स, हमने
इसकी जो समरी है इस पोएम की वो भी दे दी है, और उसको भी आप उर्दू भी यहाँ पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसको पढ़ के आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पे हल भी कर दिया गया है। ग्लॉसरी के वर्ड्स और उनकी उर्दू मीनिंग भी साथ में दे दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सकें। और जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको भी मैंने यहाँ पर हल कर दिया है। बाकायदा मैंने लिटरेरी डिवाइसेस को पोएम नंबर 1 के अंदर तफसील के साथ वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था। आप को मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से लिटरेरी डिवाइसेस को भी समझें, और ये बहुत ही अहम है। मुकम्मल एक्सरसाइज की सॉल्व्ड पीडीएफ हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और मुकम्मल सॉल्व्ड एक्सरसाइज को पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर लें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। और मज़ीद इस तरह की तालीमी एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।